Friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel. I hope you are enjoying your studies. Now, to add in these studies for 10th standard in history, I have brought a new chapter, that is second chapter, Historiography, Indian Tradition. Now, try to understand in this chapter is divided into two main parts. In the beginning of the chapter only it is mentioned. What is the first part? Tradition of Indian historiography. So all about Indian historiography. And second part is Indian historiography, various ideological frameworks. The second point I will tell later on. In this video, today's video, we are going to cover only first point, that is tradition of Indian historiography. Now this point is divided into three parts. Three time zones, like first is ancient period, second is medieval period, and third is modern period. So you can call it like historiography in the ancient period, then historiography in the medieval period, and third is historiography in the modern period. Now first thing I want to clarify with you, which periods are called ancient period, medieval period, and modern period, right? So in the first answer only, in first point, right, ancient period, no, some periods are mentioned like BCE, right? Then first CE. So till first CE or 4C, we call this period as ancient period as far as Indian tradition is concerned, till 4th CE. Then from 4CE till 16th century, we call that period as medieval period of India. And after 16th century till 1947, we call it a modern period of Indian historiography. So I hope you understood these three sections. So let's begin with the textual things, right? So in first point only it is said that in last chapter we have studied about Western traditions of historiography, and in this lesson we are going to talk about Indian historiography. So first point is historiography in the एंशियंट पीरियड. सो पुराने ज़माने में इंडिया में हिस्ट्री किस तरीके से हैंडल किया जाता था, किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता था. सो आई विल रीड द फर्स्ट पैसेज. इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है कि जो कुछ चीज़ें थी जो हम आगे के जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका था, और वो था ओरल रिसाइटल्स. क्योंकि लोग पढ़े हुए नहीं थे, उनको लिखना नहीं आता था. सो हाउ टू पास ऑन द थिंग्स? बाय ओरल रिसाइटल्स. तो ओरली चीज़ें पास ऑन करती. कौन सी चीज़ें? तो तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है. मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स. तो हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, उनके जो ग्रेट डीड्स है, जो महान कार्य है, उनकी जो यादें हैं. सेकंड, माइथोलॉजिकल लोअर, तो जो पारंपरिक कथाएं हैं. एंड थर्ड, मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस. तो समाज में जो जो बदलाव हुए हैं, जैसे कपड़ों में बदलाव हुआ है, खान पान में बदलाव हुआ है, शादी करने के तरीक़ों में बदलाव हुआ है, राइट? सो दिस सोशल ट्रांजिशन, दिस थ्री थिंग्स, these memories are passed on, preserved with the help of oral recitals. Then second passage, the inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BC or perhaps before that. तो देखो इंडिया में कुछ चीज़ें मिली, जैसे एंशियंट पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे. इंस्क्रिप्शंस, जो पत्थरों पे या फिर कुछ लिखा गया है, तो इंस्क्रिप्शन ऑन द हरप्पन सील एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, मतलब कुछ चीज़ें मिली है. वो क्या कंफर्म करता है कि इंडियन लोगों ने जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, लिखने की जो कला है, कौन से BC से अवगत की है? फ्रॉम 3rd मिलेनियम BC और परहैप्स बिफोर दैट, और शायद उसके पहले. लेकिन एग्जैक्ट पीरियड शायद हमारे हाथ में नहीं, इसलिए ऐसा बोला है, राइट? हाउएवर, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Deciphered means समझना, and not yet successfully deciphered मतलब अभी भी हमें समझ में नहीं आया. तो हरप्पन स्क्रिप्ट में जो लिखा गया है, हरप्पन का जो लैंग्वेज है, अभी भी हमारे हिस्टोरियन को
उसको मतलब समझ में नहीं आया, राइट। The earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. तो जो कुछ डॉक्यूमेंट मिले हमें सबसे पहले वो कौन से फॉर्म में? इंस्क्रिप्शन, मतलब पत्थरों पे वो, मतलब वो जो पत्थर है उससे लेटर्स बनाए गए पत्थरों पे, दैट इज कॉल्ड एड इंस्क्रिप्शंस, राइट। द लेटर्स आर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स. दे आर डेटेड टू द 3rd century BC, दैट इज़ एम्परर अशोक मौर्याज टाइम्स. तो हमें पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन किसके समय के हैं? अशोक मौर्याज टाइम, 3rd BC. हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स. तो ये अशोक मौर्य जी जो भी ऑर्डर देते थे, जो रॉयल ऑर्डर देते थे, वो किसके ऊपर इंस्क्राइब किए जाते थे? नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स. फ्रॉम द 1st century C, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. तो 1st century से जो इंस्क्रिप्शंस है पत्थरों के अलावा और किसके ऊपर आने लगे? कॉइन्स के ऊपर आने लगे, मेटल इमेजेस है, स्कल्पचर्स है और कॉपर प्लेट्स पे. दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक genealogies, territorial extent and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times. तो ये जो इंस्क्रिप्शंस बने हैं कॉइन्स के ऊपर, मेटल इमेज, स्कल्पचर और कॉपर प्लेट, इससे हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स. बाद में डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, मतलब उनका जो वंश है, पहले कौन था, बाद में कौन, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज. उसको मराठी में वंशावळ बोलते हैं, राइट. टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो उनका जो साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था, राइट, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल एक्सटेंट. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स, तो उनका कारभार कैसे चलता था, उनके जो सैनिक कैसे रखते, उनको पगार देते थे या फिर कोई ज़मीन दी थी उनको इनाम में, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, तो कौन सी राजकीय घटना हुई थी उस समय. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठनाएं कौन सी थी, व्यापारियों की, राइट. बाद में क्लाइमेट, उस समय का क्लाइमेट कैसा था. फेमाइंस, क्या अकाल पड़े थे उस समय. सो ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम्स, तो उस समय की बहुत सारी चीज़ें हमें एंशियंट टाइम के हिस्टोरियोग्राफी में मिलती है. द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स, रामायणा एंड महाभारत, पुराणाज, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travelogues by foreign travelers are the important sources of history. तो और किससे हमें एंशियन हिस्ट्री का पता चलता है? तो सबसे पहले हमारे कुछ इंडियन लिटरेचर के एपिक्स है, बहुत फेमस है वो, रामायणा एंड महाभारत. उसके बाद पुराणाज, उसके बाद जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट रखे गए हमारे इंडियन ऑथर से, उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है. और लास्ट है ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स. तो पुराने समय में इंडिया में कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स भी घूमने आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. तो देखो, कुछ राजाओं ने या फिर कुछ राजाओं के जो हिस्टोरियन थे दरबार में, उन्होंने बायोग्राफीज लिख के रखी है, उनके फैमिली के बारे में जो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज है वो लिख के रखी है. नाउ टुडे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या अपने पास? यस. हर्षचरित, रिटन इन द 7th century C बाय बाना भट्टा, इज किंग हर्षाज बायोग्राफी. तो ऐसी किताब मिली है हमें, उसका नाम है हर्षचरित. कौन से सेंचुरी में लिखी गई है? 7th century CE. और किसने लिखी है? बाना भट्टा. और दिस बुक इज़ अबाउट किंग हर्षाज बायोग्राफी. इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम्स. तो ये जो किताब है हमें क्या पोर्ट्रे करती है, क्या दिखाती है? एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती, किसके बारे में? सोशल, समाज के बारे में. इकोनॉमिक, उस समय व्यवहार कैसे चलते थे. पॉलिटिकल, उस समय पॉलिटिक्स कैसे चलता था. रिलीजियस, लोग पूजा विधि कैसे करते थे. और कल्चरल लाइफ, लोगों का सांस्कृतिक जीवन कैसा था उस राजा के समय, ये सब इस किताब में दिखाया गया है. तो पहला पॉइंट हमारा ख़त्म हुआ है, दैट इज़
एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशियंट इंडिया। तो उसमें एक बॉक्स रहेगा है ऊपर हमारा, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम पॉइंट, एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया। तो ये जो यहाँ पे बॉक्स दिखाया गया है वो क्या है, सोहा गौरा कॉपर प्लेट। तो देखो एक पैसेज में आया है कि कॉपर प्लेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ऐसी एक गोरखपुर में एक गांव का नाम है सोहा गौरा, गोरखपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश में ये कॉपर प्लेट मिला हुआ है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। तो किसके समय का है, मौर्यन पीरियड। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज़ इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो लिपि लिखा गया है, जो लिखावट हुई, कौन से लिपि में हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। The symbols known as tree in railing and mountain at the beginning of the inscription also occur on punch marked coins। तो यहाँ पे जो कुछ सिंबल दिखाए गए, जैसे झुका हुआ ट्री है, माउंटेन है, ये यहाँ पे दिख रहे, तो कॉइन पे भी मिले हुए हैं ये, राइट, मौर्यन पीरियड पे। Another symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of a granary। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इमेज में, जो 4 पिलर पे खड़ा है, तो उसको क्या बोला गया है, ग्रैनरी। ग्रैनरी मतलब गोडाउन, धान का गोडाउन, राइट, ग्रेन्स का गोडाउन। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट द ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रैनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। तो ये जो इंस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको इमेज में, एक रॉयल ऑर्डर है, मतलब एक राज आज्ञा है, राज आज्ञा है किसके बारे में, कि इस गोडाउन में जो ग्रेन्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वेरी केयरफुली। इट इज़ सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमाइन। और एक मतलब निकाला गया है इसमें कि अगर अकाल का समय है, फेमाइन का समय है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट इन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो अभी मैं सेकेंड पॉइंट लेने वाला हूँ, वो है हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, राइट। सो फर्स्ट पैसेज, द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ काश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज़ क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये जो किताब लिखी गई राज तरंगिनी, इसकी जो स्टाइल है राइटिंग की, ऐसा लगता है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बहुत क्लोज है। लेकिन ये किताब हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में नहीं मानते, इसको मेडिवल पीरियड में मानते, लेकिन इसका जो स्टाइल है इट इज़ वेरी क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये किताब किसने लिखी है, कल्हाना। कौन से सेंचुरी में लिखी है, 12th century। और एक किताब का सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये किताब की जो स्टाइल है क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्यों मानते हैं हम, तो इसका कारण आगे दिया है। कल्हाना हिमसेल्फ सेज that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions। तो देखो क्यों क्लोज है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, यहाँ पे कारण देखिए, कल्हाना खुद बोलता है कि उसकी जो राइटिंग है, राइट, वो कब की उसने, आफ्टर क्रिटिकली एग्जामाइनिंग वेरियस सोर्सेस। तो देखो क्रिटिकल एग्जामिनेशन हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो एक ऑथर है वो मानता है कि हमें अगर हिस्टोरियोग्राफी लिखनी है, हिस्ट्री लिखनी है, सो वी शुड क्रिटिकली एग्जामाइन द डॉक्यूमेंट्स। तो कल्हाना ने कौन सी चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामाइन किया और ये किताब लिखी है, तो लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जैसे कुछ टेम्पल्स है, चर्च है, मस्जिद है जो गिरे हुए हैं, राइट, उनको उसने ऑब्जर्व किया है। डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, तो जो वंशावल है राजा के फैमिली का, एंड लोकल ट्रेडिशंस, और उस समय की जो परंपरा है उनको समझ के उसने किताब लिखा हुआ है। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो ये जो मेडिवल पीरियड है इंडिया का, इस समय मुस्लिम राजाओं का राज चलता था यहाँ पे। तो उनके दरबारों में जो लोग थे उनके ऊपर कौन से भाषाओं का, कौन से हिस्टोरियोग्राफी का प्रभाव था, तो अरेबिक एंड पर्शियन। तो इनमें से एक हिस्टोरियन है, उसका नाम है ज़ियाउद्दीन बारानी, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन तारिक-ए-फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो मेडिवल पीरियड में ज़ियाउद्दीन बारानी जो किताब लिखी उसका नाम क्या है, तारिक-ए-फिरोज शाही। और इस किताब का महत्व क्या है, तो इसमें पर्पस बताया गया है किसका, हिस्टोरियोग्राफी का। तो कौन सा पर्पस है हिस्टोरियोग्राफी का अकॉर्डिंग टू ज़ियाउद्दीन बारानी? अकॉर्डिंग टू हिम
The historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. तो उसने एकदम क्लियरली बताया कि जो हिस्टोरियन होता है उसने सिर्फ राजा के वैलर मतलब उसके साहस, युद्ध के बारे में, और पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए उसने कौन सी अच्छी अच्छी पॉलिसीज, योजनाएं लाई, सिर्फ इसके बारे में नहीं लिखना चाहिए। तो और किसके बारे में लिखना चाहिए? रूलर्स फीलिंग्स, उसको क्या अपयश आया है, इनकरेक्ट पॉलिसीज, उसकी कौन सी गलत योजनाएं थी, इसके बारे में भी लिखना चाहिए। बारानी फर्दर सेज दैट अ हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द वाइज, द लर्निड एंड द सेंस ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। तो इसके अलावा हिस्टोरियन ने कौन सी चीज़ें ध्यान में लेनी चाहिए? तो बारानी का कहना है कि जो टीचिंग्स है वाइज लोगों की, जो होशियार लोगों की टीचिंग है, जिन्होंने हमें गाइड किया है, उनकी टीचिंग्स को ध्यान लेना है। द लर्निड, जो पढ़े हुए लोग हैं, द सेंट्स, जो संत लोग हैं, इनके टीचिंग का कल्चरल लाइफ पे लोगों के क्या इफेक्ट हुआ है, इसको भी हमें ध्यान में लेना है। Thus Barani expanded the scope of historiography. So this is very important point of Ziauddin Barani. For the historians in the Mughal courts, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. तो देखो मेडिवल पीरियड में हमारे यहाँ पे कौन राज करता था? मुगल एम्परर्स थे। तो उनके दरबार में जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने दो चीज़ों को बहुत महत्व दिया। कौन सी थी वो दो चीज़ें? पहला है प्रेजिंग द एम्परर्स, जो जहाँपना है, जो एम्परर है उसको हमेशा प्रेज करना, उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना। और सेकेंड पॉइंट क्या है? एग्जिबिशन ऑफ लॉयल्टी। तो अपनी जो विश्वासहर्ता है, जो प्रामाणिकता है, वो किसको दिखाना? अपने राजा को दिखाना, राइट। The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. तो ये जो हिस्टोरियन है या फिर दरबार में जो लोग थे, अपने राजा की प्रशंसा कैसे करते थे, अपनी लॉयल्टी कैसे दिखाते थे? तो कविताएं लिखते थे। तो बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई है, कुछ पिक्चर बनाए गए, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए गए। बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल तुज़ुक-ई-बाबरी। तो ये जो बाबर है जिसने मुग़ल साम्राज्य बनाया है, उसने खुद का किताब लिखा है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या नाम है उसका? तुज़ुक-ई-बाबरी। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। तो उसने कौन से युद्ध किए उसके बारे में वर्णन है। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल बाय हिम, इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड द फ्लोरा। तो बाबर ने इस किताब में और क्या क्या रिकॉर्ड किया है? माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन। किसके बारे में? वेरियस रीजन्स एंड सिटीज़ ट्रैवल बाय हिम। और वहाँ का और क्या उसने वर्णन किया है? तो वहाँ का लोकल इकोनॉमी क्या था, कस्टम्स, परंपराएं क्या थी, एंड द फ्लोरा, वहाँ का जो प्लांट्स वगैरह क्या थे, फ्लावर्स क्या थे, उसके बारे में भी लिखा है, राइट। अबुल फजल्स अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। तो ये मेडिवल पीरियड में और एक हिस्टोरियन है, उनका नाम क्या है? अबुल फजल, और उनकी जो किताब है वो भी बहुत फेमस है, अकबरनामा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic। और जो किताब लिखी गई है या फिर जो अबुल फजल है, इसका जो तरीका था हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री के बारे में लिखना, तो उसने क्या किया? ही कलेक्टेड ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स का क्या किया? स्क्रूटिनी किया, परीक्षण किया। और उसकी जो मेथड है वो कैसी मेथड है? डिवाइड ऑफ बायस, मतलब इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या सब्जेक्टिविटी, उसके खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, राइट। इसलिए उसका जो लिखाई है, उसका जो बुक है अकबरनामा, वो क्या बन गया है? रियलिस्टिक बन गया है। तो मेडिवल पीरियड में और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बखर। और ये बखर मोस्टली महाराष्ट्र के रिलेटेड है। बखर is an important type of historical documents of medieval times. It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. तो ये जो बखर नाम का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल पीरियड का, इसमें क्या लिखा गया है? सबसे पहली बात है यूलॉजीज ऑफ द हीरोज, जो महान हीरो थे उस समय के, उनके बारे में यूलॉजीज, संगीत लिखा गया है, राइट।
स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, तो कोई ऐतिहासिक घटना ऐसी हुई है जिसके बारे में स्टोरीज लिखी गई है। बैटल्स, किसी युद्ध का वर्णन किया गया है। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, किसी महान व्यक्ति का जो जीवन है वो गीत के स्वरूप बखर में लिखा गया, राइट। मराठी बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, तो मराठी बखर्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। पहला है सभासद बखर। इट वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। तो जब ये सभासद बखर लिख रहे थे, कृष्णाजी अनंत सभासद जब बखर लिख रहे तो किसका राज चल रहा था उस समय? छत्रपति राजाराम महाराज। और उनके जो किताब का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो कौन सा था? रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सभासद बखर बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद है भाऊ साहेबांची बखर और दूसरा है पानीपताची बखर। तो ये दोनों भी बखर का जो टॉपिक है वो एक है द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो विषय ये दोनों भी बखर में बताया गया है। बाद में है होलकरांची कैफियत, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मराठा रूल। तो होलकर, जो इंदौर के होलकर है, उनका भी योगदान मराठा रूल में बहुत ही बड़ा है। तो उनका योगदान इस बखर में बताया गया है। उस बखर का नाम है होलकरांची कैफियत। वो किसने लिखा है उसका नाम अवेलेबल नहीं है, और जब ये लिखे जाते थे तो लोग अपने नाम भी नहीं लगाते थे, राइट। बखर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, history of a sect, autobiographies regarding grievance based on mythologies and state administration by a king। तो यहाँ पे 8 टाइप की बखर से सबसे पहला कौन सा है? बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, तो राजाओं के जीवन के बारे में है। सेकेंड डायनेस्टिक हिस्ट्री, उनके वंश के बारे में। तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, तो किसी घटनाओं के बारे में वर्णन है। चौथा है हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, तो किसी जो पंथ है, ग्रुप है, उसके बारे में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफीज़, खुद के जीवन के बारे में लिखा गया है। रिगार्डिंग ग्रीवेंस, किसी की कोई कंप्लेंट है, तकरार है, उसके बारे में लिखा गया है। बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, जो पुराण कथा है, पौराणिक कथा है, उसके ऊपर लिखा गया है। और लास्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग, किसी राजा ने बहुत ही अच्छा कारभार किया है तो उसके बारे में भी बखर लिखी गई है। तो देखो मेडिवल पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की। यहाँ पे सबसे पहला था जो मुग़ल एम्पायर है, बाद में सल्तनत पीरियड है, और महाराष्ट्र का मराठा एम्पायर में बखर। ये चीज़ हमने मेडिवल पीरियड में देखी है। यहाँ पे एक बॉक्स भी है मेडिवल पीरियड का, वो भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है अल बेरोनी रोट इन अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। तो ये जो अरेबियन लोग हैं, ईरान, इराक के, अफ़गानिस्तान के, जो इंडिया में आए थे, इन्होंने भी किताबें लिखी है। तो एक नाम है अल बेरोनी, उसने अरेबिक भाषा में इंडिया का जो नॉलेज है, सोशल लाइफ, उसके बारे में लिखा है। इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट इंडियन वेर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स। तो ये अल बेरोनी के बाद बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स है, फॉरेन लोग हैं, इन्होंने इंडिया के बारे में किताबें लिखी है। अमंग देम टू नेम अ फ्यू आर हसन निज़ामी ने कौन सा बुक लिखा है? ताजुल मासिर। मिनाज सिराज उन्होंने लिखा है तबकत ई नासिरी। बाद में आमिर खुसरो के जो अलग अलग वर्क्स है वो भी इसमें आते हैं। तुजुकी तिमूरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूरी लांग, वॉज ऑल्सो नोन एज आमिर तिमूर हु इन्वेडेड इंडिया। तो भारत पे जिसने आक्रमण किया था, आमिर तिमूर, उसने भी एक किताब लिखी है तुजुकी तिमूरी। तारिक ई मुबारक शाही, ये लिखा है याया बिन अहमद सिरहिंदी। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। तो ये सब जो किताबें हैं मेडिवल पीरियड के कौन से पीरियड के बारे में लिख रहे हैं? तो सल्तनत पीरियड। आपको पता है सल्तनत पीरियड, ये जो मुग़ल एम्पायर के पहले जो पीरियड था मुस्लिम रूलर्स का, उसको बोलते हैं सल्तनत पीरियड, राइट। उसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया में जिन लोगों ने ट्रैवलिंग किया उनके अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग देम आर इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगोस पीस। अभी इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। और ये सब लोगों का एक ही नाम जो है, एक चीज़ के लिए हमें कनेक्ट करना है, वो है मेडिवल इंडिया
historic information, right? Ishwar Das Nagar, Bhimsen Saxena, Khafi Khan, and Nicolao Manusi were among the historians of Aurangzeb's times whose accounts are important sources of Mughal history. तो ये कुछ 4-5 नाम है, वो उन्होंने किसके बारे में लिखा है? मुग़ल हिस्ट्री के बारे में लिखा है, औरंगज़ेब के समय। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है, और वो क्या था? हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड ख़त्म हुआ, मेडिवल पीरियड ख़त्म हुआ, और लास्ट थर्ड पॉइंट है आज के इसमें, और वो है हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. तो इंडिया में सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल जो ज़मीन खोद के जो काम शुरू किया रिसर्च का, वो किसके अंडर हुआ है? ब्रिटिश रूल में। और कौन से सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वर एक्सकवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये देखो, ये ब्रिटिश रूल में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर जनरल थे, क्या नाम था उनका? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या किया? जो पुराने साइट से, एंशिएंट साइट से इंडिया में, उसका एक्सकवेशन शुरू किया, उसको खोदने का काम शुरू किया। तो उसने वही साइट क्यों लिया? तो इट्स वेरी सिंपल, उसने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े थे। देखो आगे का लाइन, ही चोज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पज़। तो जो ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया में, वो ऐसे नहीं आए, तो उनको कुछ कमाना था, वो बहुत घूम रहे थे, बहुत सारा उनको कलेक्ट करना था। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उन्होंने जो जो साइट देखा वो साइट एक्सकेवेशन शुरू किया, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे कुछ तो मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद कितने नंबर के पता नहीं, जो डायरेक्टर जनरल बन गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका नाम क्या है? सर जॉन मार्शल। और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन ढूंढ के निकाला। इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में हड़प्पा नाम का एक गांव है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाना था। तो रेलवे ट्रैक के लिए जो ब्रिक्स चाहिए थे उनको, जो ईंट चाहिए थे, वो उन्होंने बनाने के लिए एक मिट्टी निकालना शुरू किया। लेकिन उस मिट्टी में बाद में उनको रेडीमेड ब्रिक्स मिली नीचे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो रेलवे के मजदूर थे, वो ब्रिक्स यूज़ करना शुरू किया। लेकिन ये जो सर जॉन मार्शल थे, उनको बहुत सरप्राइज लगा कि ये रेडीमेड ब्रिक्स कहाँ से मिली। फिर उनको पता चला कि इसके नीचे कोई गांव दबा हुआ है। तो जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया, उनको पता चला कि अरे ये तो पुराना सिविलाइजेशन है, और उसको नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सर जॉन मार्शल हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फाइंडिंग आउट अ वेरी ओल्ड एंशिएंट civilization of India, that is Harappan civilization. Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BC or even earlier. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पता है आपको? क्योंकि इससे इंडिया का जो हिस्ट्री है कितना पुराना बन गया, तो 3rd मिलेनियम और उसके भी पहले, राइट? नहीं तो हमारे पास इंडिया के बारे में ज़्यादा प्रूफ जमा नहीं है, राइट? Many British officials in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence of the colonial policies of the British. तो इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा, लेकिन उनकी जो लिखाई है, उनकी जो राइटिंग है, वो किससे प्रभावित थी पता है आपको? तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। तो उनकी जो पॉलिसी है कि इंडिया को लूटना है, तो उन्होंने लिखा भी ऐसा कि इंडिया के बारे में अच्छा लिखा ही नहीं, राइट? इसलिए they were prejudiced, you can say. 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. तो एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है 3 volumes of the history of British India, और ये पहली किताब है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। किसने लिखी है? जेम्स मिल in 1817. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. और ये जो किताब है, इसमें क्लियरली एक चीज़ दिखती है कि किसका एब्सेंस है? ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। मतलब जेम्स मिल ने ऐसा इंफॉर्मेशन क्लियरली कलेक्ट नहीं किया है, उसको खुद को जो लगा है वो लिखा है, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। और सेकेंड चीज़ है, देर आर प्रेजुडिस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसने खुद का कल्चर हाई दिखाया है और इंडियन कल्चर लो दिखाया है, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस अबाउट इंडियन कल्चर। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन
गवर्नर ऑफ बॉम्बे वॉज पब्लिश इन 1841। तो जेम्स मिल के बाद इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखने वाला एक पर्सन है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था उसका? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1841। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। देखो, बखर जो आया है मेडिवल पीरियड में आया है, लेकिन जो मराठा एम्पायर है, जो शिवाजी महाराज के बाद वाला जो है, उस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड में काउंट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। तो मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? ग्रैंड डफ। ही रोट द बुक एंटाइटल अ हिस्ट्री ऑफ द महराठास। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 volumes. Grand Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. और इसके लिखाई में भी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दिखाई देती है। उसने इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, उसने अपना कल्चर हाई दिखाया है। सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेसिंग कर्नल टॉड्स राइटिंग्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान का जो हिस्ट्री है किसने लिखा है? कर्नल टॉड। उसका भी वही टेंडेंसी जैसे ग्रैंड डफ ने मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा है। The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment of the subject. लेकिन एक व्यक्ति है, ये ब्रिटिश ऑफिसर, क्या नाम है उसका? विलियम विल्सन हंटर। इसने जो इंडियन हिस्ट्री लिखा है उसमें उसने इम्पार्शियलिटी दिखाई है, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writings. अब ये ग्रैंड डफ ने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेजुडिस, बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया था मराठा एम्पायर, मराठा हिस्ट्री के बारे में। तो 2 लोग हैं इंडियन हिस्टोरियन, क्या नाम है उनका? नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन लोगों ने क्या काम किया कि जो ग्रैंड डफ का जो राइटिंग है उसको एक्सपोज किया, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोज की और दुनिया के सामने लाया कि इंडियन जो कल्चर है, जो मराठी कल्चर है, वो उसके कोई प्रेजुडिस नहीं। ये लोग ब्रिटेन के खुद को बहुत हाई समझते, दूसरों को लो समझ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द थिंकिंग, राइट? So that view was very clear. So here we'll stop the first part of the history, second chapter. I hope you can understand it. If you have any problem, you can write about to my YouTube channel. If you like this, if you want to continue next time, please subscribe my channel. I will bring more detailed information about this chapter. Thank you very much.